Hello everyone, I hope you all are doing well. So let us continue our chapter resources and development. In the last video we have completed what is resource and the classification of resource. Now we are going to talk third point, development of resources. So if generally question is asked that why do we need a resource? So you have to answer in 2 points that resources are vital for human survival first, and the second is for maintaining the quality of life. So basically, resources help us for survival. Resources are very useful, very helpful for human survival, and at the same time, it also help us to maintain the quality of life. So अगर आप कोई food, if you are eating any food, है ना, तो वो हम grow करते हैं land से. Land is also a resource and natural resource. We drink water, that is also a resource. So everything that we see around, uh, that is supporting our life in some way or other, it is a resource. So basically it is very necessary for our survival, and at the same time it also help us to maintain the quality of life. Like you are watching this video on your mobile phone or in your laptop, it's also a resource. You are also a resource, and uh, you are being converted into a resource. क्योंकि अगर आप ह्यूमन बीइंग को स्किलफुल करते हो, एजुकेट करते हो, तो they they will one day or other they will become engineer, doctor. So they are going to produce something, they are going to produce services, and that is how they become a resource. So basically resources are very useful. Even human beings are himself a resource, but for the survival of human beings we need a resource, and for the maintaining the quality of life. So basically अगर आपसे क्वेश्चन हो कि what is the importance of resource, why do we need resource, so you can answer it in two ways, that we need resources for human survival and for maintaining the quality of life. The second is what causes the depletion of resources. Yeah, what is the major challenge for the resources? So there are basically three major challenges, and what led these challenges? Indiscriminate use. Indiscriminate use of resources led the major challenges. The first one is a depletion of resources. So resources are now being depleted. Why? Because of the because few people wanted it for their greeds. तो कुछ लोगों की लालच की वजह से रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं. सो अगर आपकी कुछ ज़रूरतें हैं, दैट कैन बी फुलफिल्ड, दैट मच रिसोर्स वी हैव, बट इफ यू वांट टू सेटिस्फाई योर ग्रीड विद दिस रिसोर्सेज, देन that much resource we do not have. So greed cannot be satisfied, but your need can be satisfied. लेकिन कुछ लोग जो पावर में हैं, those who can exploit the resources, they are using it indiscriminately without thinking that what will happen in the future, what will be left for the future generation, and that is how the resources are being depleted. Like we are using a groundwater without thinking that how much money we needed, sorry, how much water we needed. So groundwater, अगर मान लीजिए कि बारिश, it's a renewable water. Suppose groundwater is refilled by 100 liter per year, and you are using it 90 liter per year, yeah, 110 liter per year. So if you are using it at 110 liter per year, तो 10 लीटर जो आप एक्स्ट्रा निकाल रहे हो और रिफिल हो रहा है 100 लीटर, तो ये 10 लीटर धीरे धीरे करके क्या होगा, आपके ग्राउंड वाटर को कम करेगा. और अगर आपने इसकी संख्या बढ़ा दी 110 से 120, 130, तो धीरे धीरे करके आप ग्राउंड वाटर को ख़त्म कर देंगे. दैट इज़ हाउ वी आर डिप्लीटिंग द रिसोर्सेज. जैसे आप पेड़ों की कटाई देख लो. इफ़ यू आर कटिंग डाउन द ट्रीज फॉर योर ओन पर्सनल ग्रीड, एंड विदाउट थिंकिंग कि हमें अगर एक पेड़ काट रहे हैं तो दो तीन लगा दें, तो अगर इस साइकिल को हम नहीं मेंटेन करेंगे तो इट विल अल्टीमेटली कॉज द इन्वायरमेंटल डैमेज, एज वी हैव सीन इन द दिल्ली की पोल्यूशन आप देख ही रहे हैं. प्लस आज के समय में टुडेज आज देख रहे हैं ऑक्सीजन कितनी प्रॉब्लम हो रही है. सो वी अल्टीमेटली नीड ट्रीज. तो रोड को वाइडन करने के लिए, पुल बनाने के लिए, है ना, बिल्डिंग बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, वी आर कटिंग द ट्रीज रेकलेसली. हम बिना सोचे समझे ट्रीज को कट कर रहे हैं, एंड दैट इज अल्टीमेटली डिप्लीटिंग द रिसोर्सेज
and ultimately causing the environmental damage. तो पहला ये है कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर द सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। दूसरा है ये जो रिसोर्सेज हैं ये कुछ लोगों के हाथ में है। The accumulation of resources in few hands, which in turn divided the society into two segments, haves and have not. तो हमारी जो सोसाइटी है वो टू सेगमेंट्स में डिवाइड हो गई है, हैव एंड हैव नॉट, एंड दैट इज अल्टीमेटली काजिंग द चैलेंजेस। क्या चैलेंजेस काज कर रहे हैं ये? हमारे पास एक सोसाइटी है, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, एक सेक्शन ऑफ पीपल है वो पुअर है, और वहीं पे एक सेक्शन ऑफ पीपल है वो रिच है। दे आर लिविंग देयर लेविश लाइफ, एंड देयर आर अदर सेक्शन ऑफ पीपल हु इज नॉट एबल टू अफोर्ड टू स्क्वायर मील फूड। 2 टाइम का भोजन भी उनको नसीब नहीं हो रहा है। और वहीं पे दूसरे लोग हैं जो अपने गाड़ी में डायमंड लगवा रहे हैं, है ना, एंड जहाँ पे अपने घर करोड़ों रुपए शादियों में खर्च कर दे रहे हैं। तो ये जो सेक्शन, ये जो डिवीजन है, हम ये नहीं कह रहे कि यू कैन जस्ट डिस्ट्रीब्यूट द income that they have earned with their hard work equally among the society, among the people. But हमारे पास जो सोसाइटी का जो डिवीज़न है वो ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति जो है बहुत लेविश लाइफ जी रहा, वहीं पे दूसरे लोग जो है वो खाने के लिए भी परेशान हो। एटलीस्ट दे हैव देयर बेसिक नीड्स, देयर बेसिक नीड्स शुड बी फुलफिल्ड, दैट मच रिस्पॉन्सिबिलिटी वी शुड हैव। उनकी बेसिक नीड फुलफिल होनी चाहिए। और ये कब होगा? जब रिसोर्सेज को हम सही तरीके से, फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बेसिकली इट इज काजिंग टू थिंग्स। फर्स्ट, इट्स डिस्ट्रॉइंग द एनवायरनमेंट, एंड द सेकेंड, इट काजिंग द great void in society, dividing the society into two sections, haves and have not, rich and poor. And the third is indiscriminate exploitation of resources. इसकी वजह से क्या हो रहा है? इकोलॉजिकल क्राइसिस आ रही है, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, ग्लोबल वार्मिंग, recklessly cutting down the trees, है ना, ozone layer depletion, environmental pollution, land degradation. These all are caused because the few people are owning much more resources. Even the 90% of the wealth is owned by only 10% people. तो अगर 90% जो वेल्थ है वो 10% लोग ही ओन कर रहे हैं, तो ये आप दिख रहा है कि 90% जो पीपल हैं दे आर ओनिंग जस्ट 10% ऑफ द वेल्थ। 10% वेल्थ 90% लोगों में डिवाइडेड है, और 90% वेल्थ 10% लोगों में, एंड दैट इज व्हाट अल्टीमेटली काजिंग द depletion of resources and the wide gap between rich and poor. So at one side we have people who are living their lavish life, and at other side we have people who are not able to feed themselves to square meal food. So this is what happened when resources are only in few people's hand. So what do we need to tackle this problem? We need to distribute these resources in a fair or equal manner. So we need an equal distribution of resources so that we can ensure global peace and sustain quality of life. तो सबको हम एक sustain quality of life और global peace अगर हमें create करना है, तो we need to distribute the resources equally. अब ये कैसे होगा? Suppose you are डूइंग एनी बिजनेस, तो जो भी आप वर्कर हायर कर रहे हो उनको आप उनके फेयर शेयर दो। जैसे वो 20,000 का अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप उनको 20,000 रुपीज़ दो। इट डजेंट मैटर कि आपको 10,000 में भी वर्कर्स अवेलेबल हैं। अगर आप उनके शेयर को कम करके अपना वेल्थ इंक्रीज करते हो, फ्रॉम देयर यही जो अल्टीमेटली है आपका वेल्थ बढ़ेगा और अगले का कम होगा, और यहीं से डिवीजन क्रिएट होना शुरू होता है। तो इसको लेके एक तो ये तरीका है, लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो दूसरा तरीका ये है जो गवर्नमेंट जनरली करती है कि जैसे जितना आपका प्रॉफिट ऐड होता है उसमें गवर्नमेंट टैक्सेस लगा देती है, जिसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनको जितना प्रॉफिट होता है, सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट टैक्स होता है जहाँ से इनकम होती है गवर्नमेंट को, तो वो आपके प्रॉफिट पे इनकम टैक्स लगा देते हैं, और इनकम टैक्स वो टैक्स वहाँ से कलेक्ट करते हैं। तो जो नेचुरल तरीके से लोगों को मिलना चाहिए था पैसा, वो गवर्नमेंट वहाँ से आपसे टैक्स के द्वारा कलेक्ट करती है और उसको अलग अलग स्कीम के थ्रू आप तक पहुँचाते हैं। तो देयर आर 2 ways to distribute the resources.
और यहाँ पे इक्वल का मतलब ये नहीं है कि सारे करोड़पतियों या अरबपति से पैसे लेके आप इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, नहीं। यहाँ पे इक्वल का मतलब है फेयर से। फेयर का मतलब जो जितना काम कर रहा है, जिस लेवल पे जो एफर्ट कर रहा है, जितना उसका शेयर बनता है, तो उतना आपको देना चाहिए। दैट मच ही शुड गिव। और अगर आप उसके शेयर को डिनाई करके या उसको एक्सप्लॉइट करके आप अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा रहे हो, अपना वेल्थ इंक्रीज कर रहे हो, वहीं से आपका एक्सप्लॉइटेशन शुरू होता है, वहीं से एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट होता है। और वही अल्टीमेटली जो है काज करता है, क्रिएट करता है पावर्टी एंड रिच पीपल के बीच में एक लाइन, जो गैप धीरे धीरे बढ़ता जाता है। So if the present trend of resource depletion by few individual and countries continues, the future of our planet is in danger. और अगर ये कंटिन्यूस चलता रहा और कुछ लोगों के हाथ में ही पूरा रिसोर्स रहा, तो अल्टीमेटली ये पूरे कंट्री के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। सो वी नीड टू डिवाइड रिसोर्सेज इन अ फेयर वे। So therefore we need resource planning so that sustainable existence of all kinds of life can be ensured. अगर सभी प्रकार के लाइफ को अगर हम सस्टेनेबिलिटी देना चाहते हैं, वेदर ह्यूमन, वेदर प्लांट्स, वेदर इट इज़ वाइल्ड लाइफ, तो हमें एक सस्टेनेबल, एक प्लान वे में रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ही हम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल लाइफ को एग्जिस्ट करा पाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली क्या है? वही दो चीज़ें हैं इसमें भी, कि हमें डेवलपमेंट करना है। वी शुड डू डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। हमें डेवलपमेंट करना है बट डैमेज नहीं करना, इन्वायरमेंट को डैमेज किए बिना। और दूसरा, डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। तो हमारा आज का जो डेवलपमेंट है वो हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के नीड को फुलफिल करे, न कि उनके नीड्स को वो डिप्लीट करे। जैसे हम ग्राउंड वाटर को जिस तरह से रिकलेसली यूज कर रहे हैं, अल्टीमेटली इन फ्यूचर वहाँ पे वाटर की क्राइसिस आ जाएगी। तो टू अवॉइड दिस वी नीड टू यूज़ सेव वाटर। हमें वाटर को सेव करना चाहिए, हमें उतना ही यूज करना चाहिए जितना हमें ज़रूरत है। अगर हम इरीगेशन में यूज कर रहे हैं तो हमें स्प्रिंकल्स इरीगेशन को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, सो दैट वी कैन यूज़ उतना ही हम वाटर को यूज करें, ग्राउंड वाटर को, जितना हमारे पौधे को ज़रूरत है, नॉट मोर देन दैट। So with the help of these two things, that damage development should take place without damaging the environment, and the second is development in the present should not compromise with the needs of the future generation. इन दोनों चीज़ों को अगर हम ध्यान में रख के डेवलपमेंट करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो सस्टेन करेगा, जो काफ़ी दिनों तक रहेगा। ऐसा नहीं कि आज आपने अपनी ग्रोथ बढ़ा ली और कल फिर आपको उसी ग्रोथ से फिर आप पेड़ पौधे या दूसरी चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं, मेडिकल पे, है ना, एनवायरनमेंट पे आपको खर्च करना पड़ रहा है। तो इट्स बेटर कि हम पहले से ही प्रिकॉशन ले लें। अब इसी को लेके 1992 में एक समिट हुई थी। समिट का मतलब होता है मीटिंग, और ये कैसी समिट थी? अर्थ समिट। कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ये एक प्लेस का नाम है। ये प्लेस है ब्राज़ील में। ब्राज़ील एक कंट्री है साउथ अमेरिका की। तो साउथ अमेरिका एक कंटिनेंट है, वहाँ पे एक कंट्री है ब्राज़ील, वहाँ पे एक प्लेस है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो में एक समिट हुआ था, मीटिंग हुई थी 1992 में। जून 1992 में यहाँ पे मीटिंग होती है और लगभग 100 स्टेट्स, मतलब 100 कंट्रीज़ के जो हेड थे वो यहाँ पे आते हैं, मीट करते हैं। ये पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट था। अर्थ समिट इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे हम ग्लोबल, यानी अर्थ को कैसे, एनवायरनमेंट को कैसे सेव किया जाए विद ग्लोबल कोऑपरेशन, ये पहला ऐसा मीटिंग था जो हेल्ड किया गया था जून 1992 में। इस समिट में दो चीज़ों पे फोकस किया गया। एक तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करें, और दूसरा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि कैसे हम अपने सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को करें, कैसे हम ग्लोबल चैलेंजेस को, जैसे डिजीज़ है, पॉवर्टी है, इस तरह के चैलेंजेस को कैसे फेस करें, और कैसे आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके वी कैन टैकल दिस प्रॉब्लम, पॉवर्टी, डिजीज। सो टू कम्बैट दिस, there was one agenda that was taken in this meeting, that is called Agenda 21। 21 का यहाँ पे मतलब है 21st सेंचुरी, मतलब अगले 100 साल में हमारा क्या प्लान, एक्शन ऑफ प्लान होने वाला है। व्हाट आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू डू टू इंश्योर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टू इंश्योर द इन्वायरमेंट सेफ्टी के लिए हम क्या करने वाले हैं, एंड हाउ वी आर गोइंग टू do development in future without damaging the environment and ensuring the
रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। तो ये लिया गया और इसी को नाम दिया गया एजेंडा 21। एंड ही यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट कब हुआ था, तो आप सिंपल बोलेंगे जून 1992 में। हाउ मेनी कंट्रीज वर इन्वॉल्व, 100 कंट्रीज। और दूसरा ये होता है कि एजेंडा 21 है क्या, व्हाट इज एजेंडा 21। तो ये एक प्रकार का डिक्लेरेशन था। डिक्लेरेशन का मतलब होता है घोषणा करना, किसी के बारे में कोई शपथ लेना, है ना। इट वाज अ डिक्लेरेशन और इसको साइन किया गया था 1992 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको यूनिसेड बोलते हैं शॉर्ट में। और यहाँ पे ये कहा गया कि हम डेवलपमेंट तो करेंगे, बट हमारा अब से जो डेवलपमेंट होगा दैट विल बी ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मीन्स डेवलपमेंट विल टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड विदाउट कंप्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशंस नीड। तो ये यहाँ पे डिक्लेरेशन पे साइन किया गया। और ये डिक्लेरेशन था क्या, तो अगर आपसे जनरली पूछा जाए कि व्हाट इज एजेंडा 21, तो आप कहेंगे इट इज एन एजेंडा टू कम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये एक एजेंडा था जिसमें इन्वायरमेंटल डैमेज को कम्बैट करना था कि कैसे हम इन्वायरमेंटल डैमेज को सही करें, पॉवर्टी को कैसे हम टैकल करें, डिजीज़ को कैसे टैकल करें, विथ ग्लोबल कोऑपरेशन, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, म्यूचुअल नीड्स एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ हम किस तरह से इसको टैकल कर सकते हैं। दैट वाज द मेजर ऑब्जेक्टिव दैट वाज टेकन इन दिस रियो डी जेनेरियो summit which was held in Rio, Brazil in 1992. So one major objective of the Agenda 21 is that every local government should draw its own local Agenda 21. और एक जो सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव था कि हर एक कंट्री अपना खुद का एक लोकल एजेंडा 21 बनाएंगे कि आपकी अपनी कंट्री के हिसाब से व्हाट आर द थिंग्स यू कैन डू टू सेव द एनवायरनमेंट एंड दैट स्टेप मस्ट बी टेकन बाय यू। तो हर एक कंट्री अपना खुद का एजेंडा 21 बनाएंगे सो दैट दे कैन वर्क आउट इन देयर ओन वे टू इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स। तो ये था आपका एजेंडा 21। यहाँ से जनरली क्वेश्चन आते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट, रिसोर्स प्लानिंग। As we have already discussed that we need resources for human survival and for maintaining the quality of life. So for maintaining the quality of life and for human survival we need resources. और हम सबको मालूम है कि रिसोर्सेज बहुत अबंडेंस में नहीं है, अगर हम डिस्क्रिमिनेटली यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म भी हो जाएंगे। So we need a proper strategy to use these resources and that proper strategy is called resource planning. So resource planning क्या है? तो प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। सही तरीके से रिसोर्स को यूज करना ही क्या है, प्लानिंग। जुडिशियस का मतलब जस्ट या सही तरीके से यूज करना। तो प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। और इंडिया जैसी कंट्री की अगर हम बात करें तो इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है और कहीं पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है एक पर्टिकुलर टाइप का, कहीं पे नहीं है। तो इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री के लिए जहाँ पे अवेलेबिलिटी में, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, वहाँ पे देर आर सर्टेन स्टेट्स विच हैज़ अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज, वेयर एज देर आर सर्टेन ऑफ स्टेट्स विच डज नॉट हैव रिसोर्सेज। तो उस केस में इंडिया जैसी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी कंट्री के लिए एक प्लान तैयार करे कि हाउ दे आर गोइंग टू यूज़ दिस रिसोर्सेज। तो रिसोर्स को अगर हम सही तरीके से, जुडिशियस तरीके से प्लान करके यूज़ करेंगे तो इट विल बी बून फॉर अस। ये हमारे लिए एक बहुत ही वरदान साबित होगा। तो अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब अगर देखें तो ये सारे स्टेट मिनरल एंड कोल डिपॉजिट्स में बहुत ही रिच है। वहीं पे दूसरे स्टेट जैसे अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे वाटर की बहुत ज़्यादा वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। वहीं पे बहुत सारे साउथ के स्टेट्स जहाँ पे वाटर की बहुत प्रॉब्लम है। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या लैक करता है, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीज़ों की कमी है। वहीं पे स्टेट जैसे राजस्थान है, वहाँ पे सोलर एंड विंड एनर्जी की बहुत ज़्यादा स्कोप है, बट वहाँ पे वाटर रिसोर्स नहीं है। कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख की अगर हम बात करें तो कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख ये बहुत ही आइसोलेटेड है पूरी कंट्री से, बिकॉज ऑफ रोड की कनेक्टिविटी बहुत बेटर नहीं है। दूसरा, ये कल्चर की बेसिस पे देखें तो बहुत ही रिच है। डेफिशिएंट किस चीज़ में है, तो वाटर की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बेटर,
वाइटल मिनरल्स की भी कमी है यहाँ पे। तो अगर हमारे पास एक बेटर प्लान हो, इफ़ वी हैव अ बेटर प्लान टू यूज़ दिस रिसोर्सेज, जहाँ भी ये अबंडेंस में है वहाँ से हम वहाँ पे ले जाएं जहाँ पे उनकी कमी है। जहाँ पे जिस चीज़ की कमी है, जहाँ पे जिस चीज़ की अबंडेंस है, इसका एक प्रॉपर नेटवर्क, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी और एक इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर लें, तो इन्हीं रिसोर्सेज के बेसिस पे हम बहुत ही प्रॉस्परस और डेवलप हो सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई इन कंट्री जैसी, इंडिया जैसी कंट्री के लिए ये रिसोर्स प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है। एंड दैट इज़ वाई इंडिया हैज़ अ प्लान फॉर इट। तो हमने फर्स्ट जब 1947 में हमें आज़ादी मिली, एंड इन 1951 व्हेन वी हैव इंट्रोड्यूस आवर फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फ्रॉम देयर वी हैव स्टार्टेड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग, कि कैसे हमें अपने रिसोर्सेज को यूज करना है। और रिसोर्स प्लानिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। जैसे अगर हम इसके स्टेप को समझे कि हाउ वी प्लान द रिसोर्सेज, तो पहला हमें काम होता है कि आइडेंटिफाई करना कि रिसोर्सेज है कहाँ, किस प्रकार के रिसोर्सेज हैं। फिर इन्वेंट्री, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। पूरे कंट्री में हमें आइडेंटिफिकेशन करना है और इन्वेंट करना है कि रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पे हैं। फिर उनका सर्वे करना है, मैपिंग करनी है, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को एस्टिमेट करना है कि कितना क्वांटिटी में है, कि क्या क्वालिटी है। अगर उनकी क्वांटिटी अच्छी नहीं है, तो मान लो कि हम, पता चला हम करोड़ों रुपए खर्च करिए और केवल लाख रुपए का रिसोर्स निकाल पाएंगे, तो वाई शुड वी इन्वेस्ट करोड़ रुपीज टू जस्ट dig out only lakh rupees resource? We will not invest that. That is why we need to estimate कि कितनी क्वालिटी है, क्या क्वालिटी है और कि कितनी क्वांटिटी में है। दूसरा स्टेप आता है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोर्ड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। दूसरा तरीका ये है कि हम एक प्लान करेंगे, प्लान करने के बाद हमें टेक्नोलॉजी एप्रोप्रिएट डेवलप करनी है, स्किल लेबर की ज़रूरत है, और एक इंस्टीट्यूशन सेटअप करेंगे सो दैट वी कैन यूज दिस प्लान टू डिग आउट दोज रिसोर्सेज। तो उन रिसोर्सेज को अगर हमें निकालना है, यूज करना है, तो हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, स्किलफुल लेबर चाहिए, और एक इंस्टीट्यूशन सेटअप करना पड़ेगा विच कैन डू इन्वेंशन, विच कैन कीप आई ऑन देम कि कैसे इसको करना है। तो ये दूसरा स्टेप होता है। तीसरा, मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। जो भी हमने प्लान बनाया है, हाउ इट कैन हेल्प आवर कंट्री टू बूस्ट द डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हमारे ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट में ये किस तरह से हेल्प कर सकता है। तो हमारा जो लोकल प्लान है वो नेशनल लेवल के प्लान से मैच करना चाहिए। और अगर ये एक प्रॉपर स्ट्रेटजी हम अपनाएंगे, देन वी कैन इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन आवर कंट्री। जैसा कि हमने पहले बताया था, इंडिया हैज़ मेड एफर्ट फॉर अचीविंग द गोल रिसोर्स प्लानिंग फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के बाद से ही हमने ये एफर्ट स्टार्ट कर दिया था। तो वी वर वेरी मच कॉन्शियस द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी कंडीशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रिसोर्स की अवेलेबिलिटी ये पहली जरूरी कंडीशन है किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए। जैसे ऑयल जब तक नहीं रिसर्च कर पाए थे वहाँ पे, तब तक सऊदी अरबिया काफ़ी बैकवर्ड कंट्री थी, बट नाउ इट्स अ वेरी रिच कंट्री बिकॉज ऑफ द ऑयल। तो ऑयल नेचुरल रिसोर्स के बारे में जब पता चला, इट इज़ नाउ अ वेरी मेजर सोर्स फॉर द एनर्जी, तो आज देखो काफ़ी रिच है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स तो बहुत ज़रूरी है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, बट मियर अवेलेबिलिटी विल नॉट हेल्प। केवल अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स नहीं हेल्प करेगा, वी नीड द टेक्नोलॉजी। और अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो भले ही हमारे पास रिसोर्स है, हम उसका यूज नहीं कर पाएंगे। सो वी नीड टेक्नोलॉजी विथ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। बहुत सारे आप देखोगे अपनी कंट्री में स्टेट्स हैं जहाँ पे रिसोर्सेज अबंडेंस में है, बट दे आर बैकवर्ड, दे आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड। और वहीं पे दूसरी साइड कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है, बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड। और अगर हम हिस्ट्री में जाएँ, थोड़ा सा बैक में जाएँ, तो हमारी कॉलोनाइजेशन की जो पॉलिसी होती थी पुराने समय में, जो कंट्रियाँ कॉलोनी बनाती थी, उनके पीछे भी एक ही रीज़न था कि वो चाहते थे दूसरी कंट्री के रिसोर्सेज को अपने कंट्री के बेनिफिट के लिए यूज करना। एंड दैट इज़ वाई दे यूज टू कॉलोनाइज द कंट्री, दे यूज टू इन्वेड द कंट्री एंड कॉलोनाइज द कंट्री एंड ट्राई टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज इन दोज कंट्री। वो रिसोर्सेज का इसलिए यूज कर पा रहे थे क्योंकि जिस कंट्री को वो कॉलोनाइज कर रहे थे वहाँ पे टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं होती थी, or with the help of their developed technology, they used to exploit those resources of which country they have colonized.
जो भी कंट्री वो कॉलोनाइज करते थे वहाँ के रिसोर्सेज को वो यूज करते थे। एंड दैट इज़ वाई वी नीड रिसोर्सेज विद द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। तो यहाँ से हमें टेक्नोलॉजी और रिसोर्स दोनों का इंपॉर्टेंस समझ में आया कि मियर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज नहीं हेल्प करेगा, अवेलेबिलिटी जरूरी है। एंड विद द हेल्प ऑफ with the availability of resources we need appropriate technology, and with the help of technology and availability of resources we can ensure the sustainability of the resources. तो इंडिया को अगर हम देखें तो इंडिया भी एक कॉलोनी थी और यहाँ के रिसोर्सेज को काफ़ी एक्सप्लॉइट किया गया था। तो हम इस तरह से समझ सकते हैं इस रिसोर्स की अवेलेबिलिटी, उसकी प्लानिंग और टेक्नोलॉजी। नाउ एज वी नो कि रिसोर्सेज हमारे लिए ज़रूरी हैं, तो वी नीड टू कंजर्व देम, हमें कंजर्व भी करना पड़ेगा क्योंकि ये अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। तो जो भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है वी नीड टू कंजर्व इट। तो कंजर्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया हमारे लिए। तो हम बहुत प्रॉपर तरीके से प्लानिंग के थ्रू और एक बेटर यूटिलाइजेशन अगर हम करें तो रिसोर्सेज को हम यूज कर सकते हैं। तो एक इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन अगर हम रिसोर्सेज का करेंगे तो ये हमारे इन्वायरमेंट को भी डैमेज करेगा और हमारे सोशियो इकोनॉमिक के लिए भी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिसोर्स को सेव करना है। जैसे वाटर को हमें सेव करना चाहिए। अगर हम पेड़ की कटाई कर रहे हैं, इफ़ वी आर कटिंग रिकलेसली ट्रीज, तो उसको हमें कम करना चाहिए। हमें पेड़ की हमें प्लांटेशन पे फोकस करना चाहिए कि प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे इन्वायरमेंट को हम रोक सकें, इन्वायरमेंट डैमेज को रोक सकें। गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि देयर इज एनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। तो हमारी ज़रूरत के लिए हमारे पास रिसोर्स पर्याप्त है, लेकिन अगर आप अपनी लालच को फुलफिल करना चाहेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज लिमिटेड रिसोर्सेज, देन इट विल बी नॉट पॉसिबल टू फुलफिल योर ग्रीड। तो आपकी ग्रीड को तो फुलफिल नहीं किया जा सकता, बट येस, इफ यू हैव एनी नीड तो आपकी ज़रूरत को फुलफिल किया जा सकता है विद दिस लिमिटेड रिसोर्सेज। इसका एक सिंपल सा मतलब है कि हमें अपनी लालच को लिमिटेड करके हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको यूज करना चाहिए। तो ग्रीडी और सेल्फिश इंडिविजुअल जो है वही रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं। गांधी जी जो है मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट में थे। वो नहीं चाहते थे कि प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे हो। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि वो नहीं चाहते थे कि प्रोडक्शन हो ज़्यादा से ज़्यादा। वो चाहते थे कि प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे तो हो, लेकिन मशीन्स के थ्रू ना होके ह्यूमंस के थ्रू। तो दे वांटेड टू he was against mass production but wanted to replace it with the production by the masses। वो चाहते थे प्रोडक्शन हो लेकिन नॉट विद द हेल्प ऑफ मशीन बट विद द हेल्प ऑफ पीपल। अगर मास के द्वारा प्रोडक्शन होगा मास स्केल पे, तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे लार्ज स्केल प्रोडक्शन में, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनका शेयर मिलेगा। प्रोडक्शन से जो बेनिफिट होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर होगा। अब अगर वही प्रोडक्शन आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ मशीन करेंगे, तो उस मशीन का जो ओनर होगा, मतलब कंपनी का जो ओनर होगा, ज़्यादा लार्ज सम ऑफ मनी जो होगा वो उसके पास जाएगा। इस तरह से हमारी सोसाइटी में जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल हो जाएगा एंड इट विल अल्टीमेटली क्रिएट द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर। एंड दैट इज वाई गांधी जी वाज अगेंस्ट द मास प्रोडक्शन एंड वांटेड इट टू रिप्लेस विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस। सो दिस वाज ऑल, और आई होप ये आप रीड कर लीजिएगा। तो आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।